Alright everyone, so let's continue our discussion on the landforms now. The part 1 will cover here in lecture number 43. In the previous video, I have introduced you to this concept of landforms, to different terminologies and also about the evolution, then different names of these agents, the different factors and what are the erosional and the depositional landforms formed by them. इतना हमने देखा है. चलिए अब हम बात करते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट अ डिस्कशन विथ रनिंग वाटर फर्स्टली एंड हम इनके इरोजनल एंड डिपोजिशनल देखेंगे. सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विथ रनिंग वाटर. रनिंग वाटर यानी बहता पानी. दैट शुड बी क्लियर टू यू. ओके. So these factors actually work in the humid regions when there is a heavy rainfall region. There are two components that you need to remember about running water. फर्स्टली द ओवरलैंड फ्लो दैट हैपन्स ऑन द जनरल लैंड सर्फेस. ठीक है, जैसे एक शीट है उस पर आपका नॉर्मल लैंड फ्लो मतलब लैंड पर वाटर फ्लो हो रहा है. अनदर इज़ योर लीनियर फ्लो एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द वैलीज. तो जो वैलीज होते हैं, ठीक है, जो घाटियाँ हैं, वहाँ जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स के फॉर्म में द फ्लो दैट इज़ हैपनिंग, वन एज अ नॉर्मल शीट के ऊपर एंड अनदर स्ट्रीम्स एंड वैलीज में. The depositional and erosional, both kind of landforms would be formed. So erosional landforms by running water is formed by the youthful rivers which flow over the steep gradient, as in the river is in its initial stage, the youth stage. So that flows over the steep gradient and the erosional landforms are formed. डिपोजिशनल में दे आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग ओवर मीडियम टू जेंटल स्लोप्स. तो यहाँ पर स्टीप ग्रेडियंट है, यहाँ मीडियम टू जेंटल स्लोप होगा और बहुत कम स्टीप स्लोप्स होंगे. दिस यू नीड टू रिमेंबर. अनदर इज जहाँ ओवरफ्लो लैंड की बात हो रही है, वहाँ पर द काइंड ऑफ इरोजन इज शीट इरोजन, बिकॉज इट हैपन्स, ये शीट वाली चीज़ तो हमने देखी है, इट हैपन्स इन द नैरो टू वाइड पार्ट्स. पतला भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज़ इन द लैंड सर्फेसेस, because of the friction of flowing water. So if the water is flowing, there will be friction with the land. Some materials from the land surface will be removed in the direction of flow. So you just have to imagine. See, this is very simple. Now before we actually go ahead with this discussion here, please remember, questions are actually not asked much from this section of the landforms. Previous ones is still they are asked, but not from this section of the landforms much. And it is again, as I said, slightly complicated. Not even many of the optional students are able to handle this. So you just have to focus on a basic understanding of the things. You don't have to worry about doing much of the details, which is otherwise of not that significance. So please focus on that very precisely. Okay, so now you have to imagine, let's say here is the land surface and over which water is flowing. So because of the flow of water, there will be frictional relation developed between the water and the land, and because of that some material from the land surface will also be removed in the direction of the flow. It should be clear. Then it results in the formation of small and narrow rills. Rills क्या होते हैं? It is a kind of stream only. Stream क्या है? जैसे नदियों में पानी बह रहा है, so you have the streams, right? So they are smaller streams, you can say. They are called as rills. It further results in the development of long and wide gullies. Gullies क्या हैं? They are the smaller and the narrower passages formed by the rain or the stream. Then they further deepen. धीरे धीरे deep हो जाते हैं, widen हो जाते हैं, lengthen हो जाते हैं. In length, depth, width, everything they started to expand, and there is formation of valley, जिसको आप घाटी बोलते हो. तो आपको समझ आ रहा है फ्लोइंग वाटर से हाउ डज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वैली. धीरे धीरे फर्स्टली रिल्स आर फॉर्म, फर्स्टली मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, देन रिल्स आर फॉर्म, स्मॉलर स्ट्रीम, then gullies are formed which are smaller narrower passages, then it is deepening, widening, so valleys are formed. एक term है again peneplain. So यहाँ पर क्या है, they are almost plain forming as a result of stream erosion. This term आपको ध्यान देना होगा कि it is related to the running water, और यहाँ पर almost because of the erosional stream की वजह से जो erosion हो रहा है एक kind of plain form होने लग जाता है, तो उसको peneplain बोलते हैं. ये आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, वाटर के मूवमेंट को लेकर के. अब जैसे यूथ स्टेज में अगर है, इनिशियल स्टेज में इफ़ यू से सो हियर यू विल फाइंड वेरी फ्यू स्ट्रीम्स, ठीक है, नॉट मच ऑफ अ स्ट्रीम. ऑल्सो देयर विल बी पुअर इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो इंटीग्रेट नहीं करेगा. वी शेप्ड वैलीज जो हैं वो फॉर्म्ड होंगी. ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. नाउ देयर इज़ नो अदर चॉइस बट टू रिमेंबर देम, लाइक यू कैन नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. यहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स होंगे या तो ना होंगे या तो बहुत ही नैरो होंगे, इधर नैरो और नो फ्लड प्लेन्स, ठीक है.
द स्ट्रीम डिवाइड्स जो होंगे वो काफ़ी ब्रॉड होंगे. मियांडर्स फॉर्म होते हैं. मियांडर्स क्या है हम इस पर आगे बात करेंगे. वाटरफॉल्स विल ऑल्सो बी देयर इफ़ द लोकल हार्ड रॉक बॉडीज़ आर एक्सपोज्ड. तो अगर वो एक्सपोज हो रहे हैं तो वाटरफॉल्स भी हो सकते हैं. मेच्योर स्टेज, ग्रेजुअली व्हेन द स्टेजेस चेंज. सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे फ्यू स्ट्रीम्स, यहाँ पे प्लेंटी स्ट्रीम्स. यहाँ पे पुअर इंटीग्रेशन, हियर गुड इंटीग्रेशन. वी शेप्ड वैलीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बोथ. डीप वैलीज आर देयर, ब्रॉड ट्रंक स्ट्रीम्स आर देयर. ठीक है. वाइडर फ्लड प्लेन्स आर देयर. यहाँ पे नो या नैरो फ्लड प्लेन्स था, हियर वाइडर फ्लड प्लेन्स. Disappearance starts to happen of the youthful features. These are the youthful features. In the mature stage, the disappearance of these features. Some of them, of course, many of them are overlapping also. So some of them features will disappear. The waterfalls and the rapids and all of that will also disappear. Stream will flow in the meanders. आपको बताया meanders आगे बात करेंगे. ठीक है, इस तरीके से shape जो रहता है. Old पे बात करते हैं. Older stage जब वो पहुँचेगा from youth to mature to older. Few smaller tributaries. Now you should know about what are tributaries and distributaries. ठीक है, जो smaller streams जो join करती है rivers को. Gentle gradient होंगे, free movement होगा streams का over the flood plains. Broad divides will be there, lakes, swamps, marshes. अब इस level पर आके काफ़ी ये form करने लग जाएंगे. And landscape will be at sea level or above the sea level. Now the most important thing जो हमें करना था इसमें, because this is a section that we have to do, the erosional landforms formed from the running water, and then we will see the depositional landforms from running water. अभी running ही water है, ठीक है. ये नंबर 2 पर जो है वो बाद में आएगा. नंबर 2 ग्राउंड वाटर है तब तक. अब ये सब नंबर 4, these are just the sub parts of depositional landforms, so you don't have to get confused. And that was the reason कि मैंने यहाँ पे आपको चार्ट में सब कुछ दे दिया था. So you know that till we are finishing meander, only then we move to the next agent, which is groundwater. Otherwise, all of these are the different landforms formed from running water itself. Some erosional, some depositional. Okay, let's start with the first erosional landform. First is your valley. आपने valley का तो सारा देख ही लिया है. यहाँ पे rills, gullies and valleys form हो रहे हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ बताना नहीं है. शेप्स के जो डायमेंशंस हैं, ऑफ कोर्स दे चेंज. शेप्स एंड द डायमेंशंस दे कीप ऑन चेंजिंग. सो या तो वी शेप्ड वैली रहेगा, या अदर नेम्स आर लाइक जॉर्ज, कैनियन एक्सेट्रा. तो जॉर्ज में क्या है, दे आर द डीपर वैलीज विथ स्टीप टू स्ट्रेट स्लाइड्स. कैसे भी साइड्स हो सकते हैं इसके, स्टीप भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं. दे विल हैव इक्वल विड्थ एट द टॉप एंड द बॉटम. तो इसमें ऐसे नहीं है कि ऊपर वाइड हो करके ये नैरो हो जाएगा. नो, इट विल हैव इक्वल विड्थ, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. So George, let's say something like this. So if you go deeper inside, the width will remain same. Canyon, steep step-like slide slopes. ठीक है, step-like है, steps की तरह होगा. So it will be wider at the top and धीरे धीरे bottom पे आते आते हल्का सा narrow down हो जाएगा. So it is a variant of George only, of course. लेकिन थोड़ा सा difference है कि यहाँ पर wider और narrower differences you need to remember. And यहाँ पर they are formed in the horizontal bedded sedimentary rocks. You know what are sedimentary rocks? उसमें horizontal layers में वो पाए जाते हैं. Next erosional landform is your potholes and plunge holes. Potholes क्या हैं? Potholes नाम से ही आपको थोड़ा समझ आएगा. Something like a गड्ढा. So they are the circular depressions formed over rocky beds of the hill streams. अब यहाँ पर क्या है, जो हिल पर जो आपके वाटर स्ट्रीम्स हैं, जो पानी बह रहा है, वहाँ से जो भी इरोजन हो रहा है, या एब्रेजन इज अ टर्म. एब्रेजन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वियरिंग ओनली, लाइक ब्रेकिंग इट अवे. सो दैट रॉक फ्रैगमेंट्स विच आर बीइंग इरोडेड एंड ब्रोक अवे, लाइक एब्रेजन हो रहा होता है. तो उसकी वजह से जो सर्क्यूलर डिप्रेशन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉट होल. नाउ अब पॉट होल्स हैं तो डिप्रेशंस बन गए, सर्क्यूलर डिप्रेशन. So there will be collection of pebbles and boulders. छोटे छोटे पत्थर हो या बड़े बड़े पत्थर हो, they will be collected in that depression because of the rotation by flowing water, and there will be of course flowing water going over it. So उससे जो rotation होगा, there will be increase in depression also. It will continue as a series. It will result later in a deep stream valley. धीरे धीरे ये valley form करने लग जाएगा and it will result in plunge pools. अब प्लंज पूल्स क्या है, दे आर द इसी का लार्जर फॉर्म है. इट इज़ जस्ट द स्मॉलर प्रोसेस दैट इज डिस्क्राइब्ड. सो लार्ज एंड द डीप होल्स फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड रोटेशन ऑफ बोल्डर्स. पत्थर है, उसके ऊपर पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, वो मूव कर रहा है और उसके बाद वो बड़ा और जो होल है वो बन जाता है. यहाँ पे इट्स जस्ट सर्क्यूलर डिप्रेशन, यहाँ पे इट्स लार्जर होल. दैट इज़ द होल थिंग. नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म इज इंसाइज्ड या इंट्रेंच्ड मियांडर्स. मियांडर्स पे अभी अगला डिटेल हमें लेटर देखना है इन द नेक्स्ट स्लाइड.
स्टीप ग्रेडियंट्स के केस में क्या होगा, नॉर्मली इरोजन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ स्ट्रीम चैनल, जो आपका स्ट्रीम है बह रहा है उसके बॉटम में, इन द बॉटम ऑफ दैट इरोजन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड. सो इफ लेट्स से देयर इज डीप स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम, काफ़ी ज़्यादा डीप है, सो यहाँ पे नॉट मच लैटरल इरोजन विल हैपन ऑन द वैली साइड दैन द स्ट्रीम फ्लोइंग ऑन द लो जेंटल स्लोप्स. वाई? बिकॉज हमने देखा कि ये बॉटम पर होता है. इफ़ इट इज़ जेंटल स्लोप देन द स्ट्रीम्स विल डेवलप मियांडरिंग कोर्स, ऐसे ऐसे होगा बिकॉज ऑफ एक्टिव लैटरल इरोजन. लैटरल आप समझ लो, साथ में ऐसे करके वो इरोड हो रहा है. एक बार आपको मियांडर का आई जस्ट शो यू द डायग्राम, तो बार बार दिस टर्म इज कमिंग, वी विल सी दैट इन डिटेल ऑफ द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, बट जस्ट सी दिस. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इट इज़ मूविंग लैटरली, मूव कर रहा है, एंड इरोजन इज हैपनिंग ओवर द फ्लड प्लेन्स एंड द डेल्टा प्लेन्स. सो डीप meanders are found, wide meanders are also found, and they are cut in hard rocks. Then you have the river terraces. ये तो आपको नाम समझ में आ रहा होगा, it is about the terrace, steps like structure. So these are the surfaces which make old valley flood or floodplain levels. ठीक है, जहाँ इनके ऊपर बनते हैं. बेडरॉक सर्फेसिस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर अलूवियल, जो इनका मेन पेरेंट रॉक होगा, उसके ऊपर कोई अलूवियल सॉइल का कोई कवर नहीं होगा, या फिर अलूवियल टेरेसेस भी आपको मिल सकते हैं जहाँ पर डिपॉजिट्स हों, स्ट्रीम जो पानी बह रहा होता है उसका डिपॉजिट हो. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इरोजन, ऑफकोर्स इट इज़ एन इरोजनल लैंडफॉर्म. सो ये वर्टिकल, अच्छा कहाँ पर लैटरल इरोजन है, कहाँ पर वर्टिकल इरोजन है, वर्टिकल इरोजन, लैटरल इरोजन, दैट यू नीड टू रिमेंबर. डिफरेंट हाइट्स, टेरेसेस हैं तो डिफरेंट हाइट्स पे इट विल बी फॉर्म्ड. इफ़ दे आर formed at the same height or elevation, then that will happen on either side of the rivers, and that is called as paired terraces. ताकि दोनों जगह, इधर भी मान लीजिए रिवर के इस साइड भी है, इस साइड भी है, and you see same height पे the formation of a landform, it will be called as paired terraces. Depositional landforms by running water पे आते हैं. First is your alluvial fans. Now they are formed when the streams flowing from the higher levels से जो पानी बह रहा है, it breaks into foot slope plains of the low gradient. You know higher and the lower gradient now. ऊपर से if it is flowing down, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्लेन्स बन रहा है, फूट स्लोप प्लेन्स बन जा रहा है, क्योंकि पानी ऊपर से. एलुवियल तो आपको वैसे भी पता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं, वी स्टडी इट इन द केस ऑफ लेट्स से द गंगा प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहाँ पर आपका अलुवियल सॉइल्स है. ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स जो होता है, तो ऊपर से नीचे बह रहा होता है, प्लेन्स बन रहा है. यहाँ पर जो स्ट्रीम्स में बह रहे होते हैं तो कोर्स लोड होता है, बहुत दरदरा मटेरियल होता है. दे फ्लो ओवर द माउंटेन स्लोप्स, देन फर्दर इट लीड्स टू द हैवी लोड अक्यूमुलेटिंग फॉर द जेंटल ग्रेडियंट्स. धीरे धीरे जो लोड है वो डंप हो जाता है, स्प्रेड होने लग जाता है. एज द ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप डिपॉजिट, मतलब जैसे जैसे ये क्या करेगा, ब्रॉड लो में लोअर उसमें ब्रॉडर रहेगा और ऊपर में कोन जैसा डिपॉजिट होता चला जाएगा, उसी को एलुवियल फैन बोलते हैं. The streams flowing over them shift their position across the fan, forming the distributaries. Distributaries क्या है, रिवर से छोटे छोटे ब्रांचेस जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं. ह्यूमिड एरियाज में जो कोन बनेगा बहुत हाई नहीं बनेगा, लो कोन्स बनेगा. जेंटल स्लोप विल बी देयर फ्रॉम हेड टू टो, ऊपर से नीचे तक जेंटल स्लोप विल बी देयर. हाई कोन्स कहाँ बनेगा, स्टीप स्लोप में बनेगा, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में बनेगा. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर द एलुवियल फैंस. देन यू नो डेल्टास, आपने टर्म सुना होगा. So they are also formed from running water, depositional feature है. Alluvial fans की तरह ही होते हैं, but they develop at a different location. Now if the load carried by rivers is not carried away far into sea or distributed along the coast, अगर ये जो load की हम बात कर रहे हैं, अगर ये बहुत दूर नहीं गया, or if it is not that much of distributed, it will spread and accumulate as a lower cone. Well sorted deposits are present there with clear stratification. ठीक है, अनलाइक द एलुवियल फैंस. कोर्स मटेरियल यहाँ भी होता है, दे सेटल आउट फर्स्ट, जो फिर धीरे धीरे फाइनर मटेरियल्स होते हैं वो लेटर सेटल करते हैं. सिल्ट, क्ले, ये सारे टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं, दे आर कैरीड इनटू सी. धीरे धीरे जो डिपोजिशन है वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो करने लगता है, इंक्रीज होता है इन द लेंथ ऑफ द ब्रांच्ड स्ट्रीम्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज, एंड देन सी के पास वो डेल्टा बिल्डअप हो जाता है. आपने ब्रह्मपुत्र डेल्टा पढ़ा होगा. Anyways, we will discuss all of these detail Indian perspective से जब हम इंडियन जोग्राफी का ड्रेनेज और वो सब करेंगे. Next is your flood plains, natural levees and the point bars. So you just need to know about the
terminologies here. Floodplains are the major landform formed from the river deposition, like valleys are the major landforms which are formed from erosion. ठीक है, prelims में अगर if that will be important, only such liners. So you basically, in short, if I actually tell you, even if you don't remember how and all of that it is formed, I know it is very confusing and slightly technical, and GS के broad उसमें आता भी नहीं है. So if you just remember, you know, this chart, that which is the erosional or which is the depositional landform formed from which agent, I think prelims के लिए that should be suffice. ठीक है, but because there is a chapter in the book, I am giving you the shorter details for the same. Okay. Then यहाँ पर क्या होता है, there is carrying of fine sized materials by slow moving water. Slowly move कर रहा है, material carry हो रहा है in gentle channel found in plains and then they get just deposited over the bed. Active floodplains क्या होंगे, the river bed which is made up of river deposits. Inactive floodplains, the floodplains above the bank. तो यहाँ पर इनके दो डिपॉजिट्स होते हैं. ये रिवर डिपॉजिट्स पे जो बनते हैं उनको एक्टिव बोलते हैं, जो फ्लड या चैनल डिपॉजिट्स पे बनते हैं उनको इनएक्टिव बोलते हैं. देन यू टॉक अबाउट द कोर्स डिपॉजिट, जो दरदरा मटेरियल जैसा मैंने बोला, इन द एरियाज जहाँ पर फ्लड प्लेन्स होते हैं, दे आर बिल्ट अप बाय द अबैंडन्ड और द कट ऑफ चैनल्स. अगर आप स्पिल्ड वाटर्स की बात करोगे, जो पानी बंट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, वहाँ से जो डिपॉजिट बनता है, सो देयर फाइनर मटेरियल्स लाइक सिल्ट एंड क्ले आर डिपॉजिटेड. डेल्टा प्लेन्स कैसे बनता है, दे आर द फ्लड प्लेन्स इन डेल्टा रीजन ओनली. जो फ्लड प्लेन हो गया मतलब पानी है और पूरा फर्टाइल प्लेन है, वो डेल्टा रीजन में. टू टर्म्स दैट वाज गिवन इन द हेडिंग, वन इज योर नेचुरल लीवीज, सो दे आर फाउंड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द, अगर सॉरी इफ दिस इज अ रिवर, सो उसके किनारे पर, बैंक पर जो काइंड ऑफ फीचर बनेगा, दैट इज द नेचुरल लीवीज. लो रहते हैं, लीनियर एज इन सिंगल लाइन में टाइप रहते हैं, या अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो पैरेलल रिजेस रहते हैं ऑफ द कोर्स डिपॉजिट्स. पर द की वर्ड हियर इज नेचुरल लीवीज का कि रिवर बैंक है. ऐसे भी करके, इवन इफ यू लाइक डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू नो द डिटेल्स गिवन, I have anyway shortened it, but if you just see the main chapter, which I'll just browse you through, you will you will feel maybe leaving this topic, which I will not recommend, because if it is given, we will do slightly. So just have a keyword associated to every terminology, because every main keyword will anyways be given in the option. For example, if natural levees is related to river banks and the main thing is कि ये depositional है, तो ये रिवर बैंक्स आएगा ही बीच में, है ना, तो ऐसे याद रखना है. पॉइंट बास या मियांडर बास की बात करें, दे आर फाउंड ऑन द कनकेव साइड, जो इस जैसे ऐसे साइड है ना, तो इस साइड में ऑफ द मियांडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स. मियांडर्स अभी आपको बताया, ठीक है, ऐसे करके. तो ये आपको पॉइंट बार दिख रहा है, उसी पे बात हो रही है. सो दे आर डिपॉजिटेड इन लीनियर फैशन बाई फ्लोइंग वाटर्स अलॉन्ग द बैंक. यूनिफॉर्म होते हैं, विड्थ में भी यूनिफॉर्म होते हैं. मिक्सड साइज जो होते हैं सेडिमेंट्स के, वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं. मियांडर्स पे बात करते हैं. फर्स्टली यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ लैंड फॉर्म, इट इज़ मोर अबाउट द चैनल पैटर्न. ये जो ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा है, सो इट इज़ मोर अबाउट द टाइप ऑफ द चैनल पैटर्न. एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ डेवलप्ड ओवर द फ्लड एंड द डेल्टा प्लेन्स. बिकॉज in such kind of regions, the river valley will not have a straight course कि बस वो ऐसे सीधा सीधा बह रही है. It will change its course. River will flow like this, therefore this shape like this. ठीक है. So what happens when the channel's gradient is very low, extremely low, there is leisure flow of water. वो आराम से flow कर रहा होता है, laterally भी flow कर सकता है. धीरे धीरे जब किनारा आएगा, so there will be irregularities. जैसे जैसे irregularities आएंगी किनारे पे, there will be kind of curvature. किनारों पर कर्वेचर, कर्व्स से भी दिखेंगे, विच विल डीपेंड ड्यू टू डिपॉजिशन ऑन इनसाइड कर्व. तो जो है ना, इनसाइड कर्व हो गया आपका, डिपॉजिट होने लगेगा, एंड इरोजन अलॉन्ग द बैंक ऑन आउटसाइड. इफ दिस डजंट हैपन, द टेंडेंसी टू मियांडर, यानी टेंडेंसी टू हैव दिस पैटर्न विल रिड्यूस. देयरफॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स. तो अब जैसे रिवर का ये इधर से अगर हम देख रहे हैं, तो रिवर का ये लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे अपना मूव कर रहा है. ये आपका कॉनकेव बैंक, या इसको स्लिप ऑफ भी बोलते हैं. इधर फॉर्म हो गया तो पॉइंट बार्स हो गया. सेम थिंग इज़ देयर. ऐसे करके जो टर्न होता है उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं. नाउ धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, यहाँ से एक रिलेटेड फीचर है ऑक्सबो लेक का. सो दे कैन आस्क यू दैट इट इज़ अ रिलेटेड फीचर ऑफ व्हाट, सो मियांडर्स. हाउ डज दिस हैपन,
लेट्स से इट इज़ मूविंग लाइक दिस, तो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ पोर्शन जो है वो अलग से बाहर होने लग जाएगा बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन. सो इस तरीके से अगर शेप जो बनता है लेक का, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक. ठीक है, उसके शेप की वजह से. देन एक्टिव डिपोजिशन हैपन्स अलॉन्ग द कॉन्केव बैंक. हमने देखा जिसको हम कट ऑफ बैंक भी बोलते हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया. ठीक है, लार्जर रिवर्स में. अंडर कटिंग विल हैपन अलॉन्ग द कॉन्वेक्स बैंक, जहाँ पर आपके जेंटलर प्रोफाइल होंगे. जैसे जैसे ये डीपर लूप्स में बनता चला जाता है, देयर आर सर्टेन कट ऑफ्स विच आई जस्ट टोल्ड यू ड्यू टू इरोजन एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहाँ पे ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं. धीरे धीरे इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा होता है और लूप इतना ज़्यादा बन चुका होता है कि धीरे धीरे ये थोड़ा बाहर ऐसे कर करके जहाँ जहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, इट गेट्स डिटैच्ड काइंड ऑफ अ थिंग विच इज़ कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक्स. The different types of channel patterns are there due to different reasons. Firstly, because water flows over gentle gradients and work laterally on banks. किनारों पर water एक तरीके से नहीं बहेगा. Irregularities will be there due to unconsolidated nature of alluvial deposits, जो कि बैंक बनाते हैं, किनारे बनाते हैं. And Coriolis force acting on the fluid water. Coriolis force actually earth के रोटेशन की वजह से होने वाले फोर्स को बोलते हैं. We will deal with this in greater detail when we will do the topic of climatology. सो फॉर द टाइमिंग जस्ट नो इट इज़ रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो वाटर पर उसका जो असर पड़ रहा होता है जिसके डिफ्लेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, यानी कि इट चेंजेस इज डायरेक्शन. हाउ डज इट एक्चुअली हैपन, वो सब हम तब देखेंगे. ओके, सो दैट वाज अ मेजर एजेंट विच इज़ योर रनिंग वाटर. द नेक्स्ट मेजर एजेंट दैट यू हैव टू डू इज़ योर ग्राउंड वाटर, द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द ग्राउंड, लाइक बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड वाटर. तो अब क्या होता है यहाँ पे, the features will be formed if rocks are permeable. Of course, if rocks, ground के ऊपर जो rocks हैं, if they are permeable, if they are letting the water go inside, only then it will happen. They need to be thinly bedded. It shouldn't be like very layer above layer. It should be highly jointed also and cracked. Cracks होंगे तभी तो it will penetrate. So surface water जो है then it will permeate or penetrate well. Vertically down, बिल्कुल नीचे depth तक चला जाएगा. Underground, what will happen? The water will flow horizontally over the joints, materials, bedding planes, etc. Rocks erode due to downward and horizontal movement. ठीक है, अब चाहे वो नीचे जाने वाला मूवमेंट हो या ऐसे मूवमेंट हो, दोनों केस में रॉक्स आपके इरोड होंगे. The work of the groundwater will result in something which cannot be seen in all types of rocks. अब क्यों? Why would it not be seen in all types of rocks? Because the रोल जो रहेगा आपका फिजिकल या मैकेनिकल, जो रिमूवल ऑफ मटेरियल्स रहेगा, इट हैज़ नॉट दैट मच ऑफ अ रोल. इनसिग्निफिकेंट रोल होता है बाय द मूविंग वाटर इन फॉर्मिंग द लैंड फॉर्म्स. तो इसीलिए उसका रोल ही उतना नहीं है, तो उसका वर्क क्या एग्जैक्टली फॉर्म करता है हमें उतना पता नहीं करता है. बट द लैंड फॉर्म्स डेवलप्ड बाय द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर, चाहे सोल्यूशन की वजह से या प्रेसिपिटेशन की वजह से, जो रॉक्स में जैसे लाइमस्टोन है ना, हमने बात की थी, याद है, कास्ट को टोपोग्राफी पर बात करी थी, जो सॉल्यूबल रॉक्स की वजह से होते हैं. तो जैसे लाइमस्टोन या डोलोमाइट रिच जो है, उसका एक मेजर फीचर है दैट इट इज़ रिच इन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसीलिए ये इसका सिग्निफिकेंस है विच यू शुड रिमेंबर. कास्ट टोपोग्राफी, ओके, इट हैज़ कम हियर ओनली. सो दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि द लाइमस्टोन और द डोलोमाइटिक रीजन शोइंग द टिपिकल लैंडफॉर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय योर ग्राउंड वाटर एक्शन थ्रू सोल्यूशन एंड डिपोजिशन. ठीक है, ये टिपिकल यहीं की टोपोग्राफी होती है. जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एड्रियाटिक सी के पास में, बाल्कन्स रीजन में. नेक्स्ट गो विथ इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म ड्यू टू द ग्राउंड वाटर. सो द फर्स्ट सेट इज पूल्स, सिंक होल्स, लेपीज एंड द लाइमस्टोन पेवमेंट्स. बस आपको टर्मिनोलॉजीज पता होने, एंड देन आई विल ब्राउज यू थ्रू द चैप्टर ऑल्सो. जस्ट लेट अस फिनिश फर्स्ट. शैलो होल्स, पहले तो क्या है? दे आर स्मॉलर टू मीडियम साइज्ड, राउंड टू सब राउंडेड डिप्रेशन. शैलो मतलब इट इज़ शैलो होल्स. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होगा, डिप्रेशंस होंगे, छोटे हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं या थोड़ा सब राउंड हो सकते हैं. दे आर फॉर्म्ड ऑन लाइमस्टोन सर्फेस थ्रू सोल्यूशन. सिंक होल एक टर्म है. सिंक होल क्या है? इट इज़ अबाउट द ओपनिंग ऑफ मोर और लेस सर्क्यूलर एट द टॉप. तो इसका ऊपर में ज़्यादा सर्क्यूलर होगा और नीचे जाते जाते एक फनल की शेप का, फनल आपको पता है इस तरीके से जो पाइप के शेप का है वो हो जाएगा. साइज कैन वेरी, एरिया एंड डेप्थ कैन वेरी. अगैन लाइमस्टोन या कास्ट एरियाज में सच काइंड ऑफ अ फीचर इज़ वेरी कॉमन.
ऑल्सो यहाँ पर क्या है, मोर कॉमन आपको देखने को मिलेगा इसमें सल्यूशन सिंक्स, यानी कि दे आर फॉर्म्ड सोलली थ्रू द सल्यूशन एक्शंस. कोलैप्स सिंक्स, इसमें फर्स्टली सल्यूशन का रोल होता है. अगर बॉटम जो है होल का वो एक केव बना दे या एक वॉइड बना दे नीचे, तो वो कोलैप्स कर जाता है. देन द लार्ज होल ओपन्स इनटू अ केव और अ वॉइड बिलो. तो उसको कोलैप्स, यानी कोलैप्स कर गया और होल बना दिया, केव बना दिया. सो दैट इज कॉल्ड एज कोलैप्स सिंक या डोलाइन. सिंक होल इज कवर्ड विद द सॉइल मैंटल, क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड वाटर की बात हो रही है. एंड दे अपीयर एज शैलो वाटर पूल्स. Another term is valley sinks या uvalas. They are longer, narrower, wider trenches. So narrow to wider trenches. They are formed when the sinkholes and the dolines join because of material movement. मतलब जैसे जैसे movement of the material is happening, they are joined along the margins and the collapsing of the cave continue to happen. Then another term is your lapes. Lapes are the ridges or the long narrow cut या grooves which are left as irregular when limestone surface is eaten away by the pits and the trenches. जब surface में गड्ढा हो जाता है, trenches हो जाते हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके का long narrow cut बनता है, that is lapes. They are formed due to differential solution. Everywhere you are finding the term solution, so that's the keyword. Along parallel to subparallel joints. These field may turn into smooth limestone pavements later, अगर वो fill अच्छे से हो जाता है तो. Another erosional is your feature coming from the groundwater is your caves. हमने देख ही लिया यहाँ पर caves को लेके काफ़ी बात हुई थी, ठीक है. हर जगह cave formation पे हमने बात करा था. कोलैप्सिंग्स में भी हमने केव फॉर्मेशन पे बात करा था, तो उसका डिटेल क्या है. सो दीज काइंड ऑफ फीचर्स विल बी प्रोमिनेंट इन एरियाज जहाँ पर ऑल्टरनेटिंग बेड्स होंगे. ऑल्टरनेटिंग में क्या हो जाता है आपका कि वन लेयर वुड बी समथिंग, अनदर लेयर वुड बी समथिंग. तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग में दे विल बी लेट्स से शेल, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट विथ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स इन बिटवीन. तो अगर शेल का एक लेयर है, फिर मान लीजिए बीच में लाइमस्टोन का लेयर है जो सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, फिर दूसरे शेल का है, फिर लाइमस्टोन का है, लाइक दैट. सो दिस काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, या फिर इट इज़ फाउंड इन और फॉर्म्ड इन एरियाज जहाँ पे लाइमस्टोन्स आर dense, massive and occur as very thicker beds. They result as long and narrow wide gaps along the bedding planes. ठीक है, जहाँ पर अभी हम bedding plane पे बात करते हैं, where the limestone dissolve. Bedding planes में क्या होगा, water will percolate down, यानी कि नीचे चला जाएगा, या फिर materials के through, या फिर जो भी cracks and joints होंगे, and then they will just move horizontally. They are formed at different elevations, यानी heights. क्योंकि ये डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ बेड्स आर देयर, यानी वो स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक कैसा है, इंटरवेनिंग रॉक, बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. दीज केव स्ट्रीम्स आर डिस्चार्ज थ्रू द ओपनिंग्स एट बोथ द एंड्स. तो टनल हो जाता है ना, जैसे कि आपका दोनों तरफ अगर ओपनिंग है तो आप टनल में घुस गए और फिर यहाँ से निकल गए, ठीक है. सो दोनों तरफ से ओपनिंग होगी. डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फ्रॉम योर ग्राउंड वाटर. वी नो अबाउट कि जो सोल्यूशन होता है उसके वजह से लाइमस्टोन CaCO3 में रिच है, सो दे आर ईजिली सल्यूबल इन द कार्बोनेटेड वाटर. CO2 जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है रेन वाटर, एंड दे आर डिपॉजिटेड व्हेन द वाटर कैरिंग इन इट सोल्यूशन इवेपोरेट्स और लूजेज द कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल ट्रिकलिंग ओवर द रफ सर्फेसेस. तो यहाँ पे जो फीचर्स फॉर्म होते हैं उनका नाम क्या क्या है, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स. स्टैलेक्टाइट्स क्या है, दे हैंग एज आइसिकल्स, यानी आइस के जो फॉर्मेशंस होते हैं उस तरीके से वो हैंग कर रहे होते हैं एट डिफरेंट डायमीटर. बेसिस में ये काफ़ी ब्रॉड रहेंगे, एंड जैसे जैसे आप उनके फ्री एंड की तरफ बढ़ोगे टेपर हो जाता है, ठीक है, टेपर हो जाएगा यानी कि पतला हो जाएगा. स्टैलेग्माइट में दे राइज अप फ्रॉम द केव फ्लोर. दे आर फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सर्फेस थ्रू थिन पाइप ऑफ स्टैलेक्टाइट. इसी के नीचे अगर स्टैलेक्टाइट का पाइप है तो वहाँ से जो पानी ड्रिप कर रहा होता है, यानी पानी नीचे गिर रहा होता है, उसी से वो केव पर राइज होते हैं. पिलर्स, अच्छा सॉरी, स्टैलेग्माइट्स के लिए कॉलम या डिस्क शेप का होता है, स्मूथ राउंड एंड होता है, मतलब अच्छा राउंड एंड होता है इसका, जो एंड है वो उसमें कोई इशू नहीं है. या मिनिएचर क्रेटर एज इन गड्ढा, डिप्रेशन भी बन सकता है. पिलर्स एंड कॉलम्स जो हैं दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट डायमीटर, एंड जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का फ्यूजन हो जाता है तो पिलर्स बन जाते हैं. दैट इज़ अबाउट द ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स.
I know, otherwise if I proceed further it will be very hectic for you to understand because there are so much of information overload. But I repeat, the topic is not being asked in the examination to an extent. You should just be familiar with the terminologies. Don't get too much into this. इसके पहले वाला जो chapter था geomorphic process, you definitely should be knowing every detail of that. But for this landform portion, please do not worry. The topics which are important, I myself emphasize on them. ठीक है? So you just be familiar because it is given in the book. Rest nothing needs to be worried about. ग्लेशियर ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नाउ आई जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू द बुक सो दैट यू फील कंफर्टेबल दैट यू हैव कवर्ड पोर्शन ऑफ द बुक. सो यहाँ इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, आई हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट. देन रनिंग वाटर को लेके इन्होंने बात की है. सो रनिंग वाटर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द यूथफुल स्टेज एंड द मेच्योर एंड द ओल्ड स्टेज, जो उसके फीचर्स दिए हैं उसी को मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है. देन इरोजनल लैंडफॉर्म्स में वैलीज़ की बात की है, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स की बात की है. कुछ इमेजेस भी दिए गए हैं, जैसे कावेरी रिवर की वैली का है जो कि जॉर्ज के फॉर्म में है. सो यू नो जॉर्ज, कैनियन, वैली, इनका डिफरेंशिएशन नाउ व्हाट इज़ दैट यू नो ऑलरेडी. ये एक इंट्रेंच्ड मियांडर लूप है ना, ऐसे करके लूप दिख रहा है आपको. ठीक है, स्टेप लाइक स्लाइड्स आपको कैनियन के फॉर्म में दिख रहा है. फिर अलग फीचर्स हो गए, रिवर टेरेसेस हो गए. देन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में एलुवियन फैंस आर देयर. So you see something like this, they're deposited by a hill stream way to अमरनाथ. ठीक है, डेल्टाज हो गए, डेल्टा फॉर्मेशन इस तरह से. ठीक है, कृष्णा रिवर का डेल्टा है. देन यू हैव द फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लिवीज एंड द पॉइंट बार्स. ये हो गया आपका पूरा फ्लड प्लेन. ये जो ऐसे टर्न ले रहा है सो नेचुरल लिवी, और जहाँ जहाँ ऐसे शेप्स दिख रहे हैं पॉइंट बार्स हो गए. देन यू हैव द मियांडर्स, ये तो आपको पूरा बताइए, ये भी एक मियांडर का एग्जाम्पल है. ये ऊपर सैटेलाइट से लिया गया है. ठीक है, बूढ़ी गंडक रिवर का, मुजफ्फरपुर इन बिहार. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग कि जहाँ जहाँ पे ये कट ऑफ आपको दिख रहा है ना, कट ऑफ्स जो हो रहे हैं, दे आर द ऑक्सबो लेक्स. ठीक है, द सेम थिंग आई हैव गिवन यू इन दैट. तो जब ये ऐसे कट ऑफ होके बाहर आ जाता है तो उसको ऑक्सबो लेक जो है वो फॉर्म हो जाता है. ग्राउंड वाटर को लेके these are various karst features. Now you know karst features क्या है, जहाँ solution वाले उसमें होते हैं. तो these are the names you have done. swallow hole in section, sink hole. ठीक है, swallow hole कैसा दिखता है, sink hole कैसा दिखता है, collapse sink cave जो है वो कैसा दिख रहा है, stalactite pillar cave ऐसा दिख रहा है, stalagmite क्या है, cave का mouth यहाँ से क्या है, sink holes क्या है, valley sinks uvalas क्या है. all the terms are given in the notes. you just substantiate with the help of these diagrams. देन इरोजनल ये सब करवा ही दिया है आपको. केव्स, ठीक है, स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स इन द लाइमस्टोन केव्स, याद है. वी जस्ट रेड दैट हैंगिंग एज आइसिंग क्यूबिकल्स जो रहते हैं. ठीक है, आइसिकल्स जो रहते हैं ऐसे करके हैंग रह रहा है, आइस का पूरा जो बंच रहता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन. एंड ग्लेशियर से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर टिल देन, बाय बाय.